पैंडेमिक में है ना, अगर पूरी जनता ने किसी चीज के ऊपर घना रिसर्च किया हो ना, तो वो है क्लिनिकल रिसर्च। तो चलिए आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे सम ऑफ द lucrative career opportunities, high earning jobs, pharma jobs in clinical research field. Welcome to my channel and to my podcast. To be precise, another value-adding podcast, especially something which is on public demand. So, ये जो podcast है, it is on career guidance. So, guys, in case if you are new out over here and if you resonate with my high value-adding channel, do not hesitate to hit the subscribe button and the all notifications button. I have with me Dr. Chandra Babu, who is a group CEO, a scientist, and has also done his PhD. He is a leader, communicator and executor, a decision maker, a strategist who has worked with global top 5 pharmaceuticals, CRO and BPO organizations. डॉक्टर सीबी के साथ हमेशा बात करना एक प्लेजर रहा है, हमेशा एनरिचिंग एंड इंसाइटफुल रहा है मेरे लिए. So today we are going to discuss on clinical research topic. We are not going to talk about the basics of clinical research, but something which everyone is asking, how to work in emerging technologies in the pharma field. Right safety and well-being of the trial participants is actually the principle of clinical research, and if you feel that you can resonate with this feeling, this field is for you. Dr. CB has recruited high performers and have managed huge teams of medical writers and many more from diverse fields. I have shared entire details of Dr. CB in my video description. Feel free to go ahead, check it out and make the best use of it. Hey CB, how are you? How's life treating you? I'm fine. That's a nice thing to know, Namita, to see you after TCS GSK, after such a long time in a successful way of podcaster, and then having an interaction with you. So nice to meet you. Great. Pleasure's all mine too, CB. That's nice. Yes, please. So CB, I welcome you to my channel, to my podcast and to our world of audience. Thank you for your willingness to come over here. I'll be very happy to be contributive to the social awareness of clinical research creation, as well as if it helps in someone to get into jobs of clinical research, or being a clinical researcher yourself, Namita, you know it's a wonderful field, because to be part of clinical research is you are serving humanity in one aspect because of helping in drug development. So that is something which will be a very good thing to do, and I'm looking forward to share experiences, and this I consider as a wonderful opportunity to do so. The feeling is mutual, CB. Right. So यहाँ पर I'll just want to take a pause and tell my viewers and audience that मैं CB को CB बुला रही हूँ. That's because we have a kind of rapport. We have worked together almost 10 to 15 years back. But you guys are not going to call him CB. You're supposed to call him Dr. Chandra Babu. So that's how you're going to address him. CB, I'm allowed to address you as CB still now, right? Yes, absolutely. Yeah, absolutely. So CB, I have already shared a brief video about you wherein I have spoken about your significant credentials in the clinical research field. Nonetheless, I still want you to speak about yourself. That will give a flavor of your life to our audience. Definitely, Danita. I'm basically a clinical research professional, having more than 2 decades of experience in clinical research arena. Have a doctorate degree in gastric cancer. Did my doctorate PhD in gastric cancer, specifically for drug development. That was what was my base behind it. And have been contributing my best in this industry. I've had the opportunity to work across from domain to domain and bring in the expertise, learn vertically as well as horizontal growth perspectives, and that's what is an arena which has given me a story or a end feeling where when you will be in
in the later part of our years, we have a story to tell. Well, yes, we have contributed to the development of so many drugs which are impacting so many people world over. Maybe a minor contribution, but it does make a difference. So that's the way how I look forward to it. And later, after having understood about the clinical research domain, being interfacing with them, I realized that there is a return on investment in terms of societal returns. That means you have taken everything from the societal way, so it's back to the society you should be able to give. So that's the point where I started my entrepreneurship journey. And in this entrepreneurship journey, I started with the Right Academy and Research Center, which is primarily about training professionals into getting jobs in clinical research and artificial intelligence domain. So this is because of the fact that having done thousands of interviews of brilliant candidates, I realized that most of them have the best fitment. However, they lack the training and the job profile arrangements which will be contributed to best fitment needs of the industry. And that for that they do not require to redo anything, but they just require to have an understanding of the domain and expectation of clearness of expectation of what is required in this domain, what would be required, and that can be provided in a small short-term courses, which is bridging courses between academic excellences which they have done by becoming doctors or engineers or healthcare professionals. They can be trained in 3 months, 6 months, or 1 year's course, short-term course, to get what is required in industry, and that's what we have been doing now. Wonderful, CB. That's nice. So, CB, do you think a clinical research job is a tedious job? What exactly one does in clinical research? क्लिनिकल रिसर्च जॉब्स मतलब ये आप ड्रग डेवलपमेंट में हेल्प करने वाले, ड्रग डेवलपमेंट के प्रोसेस में वर्क करने वाले जॉब्स होते हैं। इसे अगर मैं आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करूं तो सपोजिंगली आप एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, बेसिक साइंटिस्ट है जिन्होंने लैब में काम किया है। जब आपने लैब में काम किया है तो लैब में आपने क्या किया रहेगा, माइक्रोबायोलॉजिकली सपोज मैं एग्जांपल वेरी स्पेसिफिक माइक्रोबायोलॉजिस्ट पे लूं तो आपने एक प्रोसेस देखा जिसके तहत आपने ये देखा कि एक पैथोजन है, यानी एक डिजीज प्रोड्यूस करने वाला या रोग करने वाला एक कीटाणु है। आपने उस कीटाणु या रोग जो प्रोड्यूस करता है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया है। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप पैथोजन बोलते हो। जब ये पैथोजन डिजीज कॉज करता है, आपने पता कर लिया एक पॉजिटिव एजेंट है, तो उसके अगेंस्ट में आप चाहते हो कि कुछ ऐसा सब्सटेंस जिसको आप ड्रग या मेडिसिन बोल सके बनाए जो उसको डिस्ट्रॉय कर सके ताकि उस बीमारी का इलाज हो सके। तो जब आपने ये बेसिक वर्क लैब में किया है तो आप इसे बोलते हो MIC स्टडीज, मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन स्टडीज करके आप स्टडी करते हो। तो आपको लैब में छोटे से पेट्री डिश के अंदर जिसमें आपने वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो पैथोजन है उसको ग्रो किया है, उसके अगेंस्ट में आपने ये जब मेडिसिन यूज किया है, मेडिसिन यानी जो आप जिसे आप मेडिसिन बाद में मानना चाहोगे, बनाना चाहोगे, तो उसे आपने यूज किया, उस केमिकल को यूज किया, तो वो सब्सटेंस को यूज किया, तो आपको ये पता चला कि वो उस ऑर्गेनिज्म को मार रहा है एट अ सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन। ओके, एक सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन पे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करता है। तो अब आपको ये तो क्लियर हो गया कि ये पोटेंट है, पॉजिटिव है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, आप फ्यूचर में से यूज कर सकते हो। तो आपका ये जो इनिशियल रिसर्च है जो आपने किया, दिस इज द बेसलाइन जिससे आपका स्टार्टिंग होता है। तो अब आप ये करना चाहोगे कि आप किसी पेशेंट पे यूज करना चाहोगे, लेकिन आप पेशेंट पे डायरेक्टली तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक आपने ना तो एनिमल स्टडी किया है ना ही आपने ह्यूमन बीइंग पे स्टडी किया है। तो अब आप क्या करना चाहोगे कि अब आप permissions लेके you will want to go ahead and study the same thing in animals, यानी आप एनिमल्स पे स्टडी करना, जानवरों पे स्टडी करना चाहोगे। तो जब जानवरों को आप स्टडी कर रहे हो तो आपका रिक्वायरमेंट है कि आप जानवरों में कम से कम 2 से 3 प्रजाति के जानवरों में आप इसका ट्रीटमेंट करोगे, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। जब ये मिनिमम रिक्वायरमेंट आप मैचअप कर लोगे, यानी उस जानवर को वो डिजीज होना चाहिए जो ह्यूमन में होता है, और आपका मेडिसिन उस जानवर को उस बीमारी के ट्रीटमेंट में काम कर पाए। तो जब ये जो केमिकल सब्सटेंस आपने ढूंढा है जो ये वर्क कर रहा है, तो इस टाइम पॉइंट पे इसे आप बोलते हो न्यू केमिकल एंटिटी।
जब ये न्यू केमिकल एंटिटी को आप इस एनिमल स्टडी में भी कर चुके हो, तो आपके पास अभी दो ठोस रिपोर्ट है। एक है कि ये वर्क करता है आपके इन विट्रो सिस्टम में, और दूसरा लैब सिस्टम में पेट्रिलिशियस के अंदर। दूसरा आपको ये पता है कि ये एनिमल स्टडीज में भी वर्क कर रहा है। तो जब आपको एनिमल स्टडीज में भी वर्क करता हुआ नजर आ रहा है, तो अब आप इसे नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो यानी अब आपको टेस्ट करना है कि ह्यूमन बीइंग पे ये वर्क, ह्यूमन बीइंग्स में जिनको डिजीज है उस पर ये काम करेगा या नहीं। तो इस स्टेज में भी आप इसे न्यू केमिकल एंटिटी बोल रहे हो। ओके, तो ये जब आप आगे लेके जाना चाहते हो, तो अब आपको जब ह्यूमन बीइंग का स्टडी करना है, तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको पहले इसका परमिशन लेना पड़ेगा, प्रोटोकॉल्स बनाना पड़ेगा। आप उसके लिए जो आप प्रावधान है वो है इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग करके IND एप्लीकेशन देना पड़ेगा। IND एप्लीकेशन में आप मेंशन करोगे आपके सारे रिपोर्ट्स एनिमल स्टडीज के पहले के, और जस्टिफाई करोगे कि क्यों आप ये समझते हो कि ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो केमिकल सब्सटेंस है, आगे चलकर आपके लिए ह्यूमन बीइंग्स में ट्रीटमेंट का प्रावधान प्रोड्यूस करेगा। तो अब आप जब आप इसे ह्यूमन बीइंग में स्टडी करना चाहते हो, तो आप FDA, सपोज आपने रेगुलेटरी बॉडी FDA को भेजा होगा। तो FDA को भेजने के बाद FDA आपके एप्लीकेशन को, IND एप्लीकेशन को 30 डेज में स्टडी करेगा। अगर उस 30 डेज में उसको लगे कि आपको कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो आपको लिखेगा। अगर 30 डेज में आपका इंफॉर्मेशन नहीं, आपको इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट नहीं आता है, तो आपका IND इफेक्टिव हो गया। तो इफेक्टिव हो गया तो इसका मतलब आपका जो न्यू केमिकल एंटिटी है, नाउ इट इज बीन कंसिडर्ड एज अ इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग, जो अब आप आगे स्टडी कर सकते हो। आगे जो स्टडी करते हैं हम लोग बोलते हैं फर्स्ट इन ह्यूमंस, FIH स्टडी। तो FIH स्टडी जो है उसमें आप फर्स्ट इन ह्यूमन में आप क्या करोगे, वेरियस फेजेस होते हैं। आप पहले से तो आप ये किसी बीमार पेशेंट्स पे स्टडी नहीं करना चाहोगे, पहले आप ये पता करना चाहोगे कि क्या आपका डिजीज हेल्दी पर्सन में कुछ साइड इफेक्ट्स या कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं लेके आता है। तो आप सिर्फ फेज 1 ट्रायल बोलते हो, जहाँ पे आप ये स्टडी करते हो कि वो हेल्दी वॉलंटियर्स के लिए कैसा है। तो हेल्दी वॉलंटियर्स की स्टडी में आपको पता चला कि वो सेफ है, तो अब आप फिर आगे का स्टडी करोगे, जिसे आप बोलोगे फेज 2 स्टडीज। फेज 2 स्टडीज में आप ऐसे पर्सन पर स्टडी करोगे जिसमें सेफ्टी और पेशेंट्स में रहेगा, सेफ्टी और एफिकेसी दोनों स्टडी करोगे। उसके बाद आप नेक्स्ट में जाओगे फेज 3 स्टडीज, जिसमें आप ये स्टडी करोगे पेशेंट्स में इफेक्टिवनेस कितना है ड्रग का, सेफ्टी तो देखोगे, वो स्टडी करोगे। ये पूरा स्टडी करने के बाद आप ये रिपोर्ट सबमिट करना चाहोगे। तो जो रिपोर्ट सबमिट करना है वो रिपोर्टेड सबमिट आप करोगे। तो आप इसके लिए सबमिट कर रहे हो कि अभी आपका जो कंपाउंड है इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग, आपके हिसाब से और आपके रिपोर्ट्स के हिसाब से वो कारगर है उस डिजीज के ट्रीटमेंट में। जब वो कारगर है उस डिजीज के ट्रीटमेंट में, तो उसे अब आप परमिशन लेना चाहते हो रेगुलेटरी बॉडी से, कि ताकि आप उसे पब्लिक में लेके आ सके, परमिशन के बाद उसे प्रोड्यूस करके लोगों के ट्रीटमेंट में यूज कर सके। जब आप ये प्रोसेस कर रहे हो, तो आप एक एप्लीकेशन डेटा के साथ आप सबमिट करते हो, जिसका नाम है न्यू ड्रग एप्लीकेशन, NDA। तो जब ये NDA सबमिट आउट होता है, तो इसके परमिशन के हिसाब से अब आप, जब आपका परमिशन आ जाएगा, तो आप उसे मार्केट कर सकते हो। ये सारा प्रावधान करते वक्त आपको एक चीज और ध्यान रखना पड़ता है कि जब आपका ड्रग, जब आपको लगा था कि न्यू केमिकल एंटिटी फ्यूचर में जाके ड्रग बन सकता है, तो आप चाहते थे एक्सक्लूसिविटी राइट, यानी आप चाहते थे कि उसे पेटेंट कर सके। ये पेटेंट पे प्रोविजन होता है कि पेटेंट किया हुआ मॉलिक्यूल आप यूज कर सकते हो एक डिफाइंड टाइम पीरियड में अपने लिए, और उस वक्त तक कोई और उसका कॉपी बनाकर या यूज नहीं कर पाएगा। तो ये पेटेंट का एक्सक्लूसिविटी राइट होता है। तो उसके हिसाब से आपको 20 इयर्स का टाइम मिलता है। तो इस 20 साल में कुछ साल आपके इन रिसर्च में लग जाते हैं। तो ऑन एन एवरेज 10 से 13 साल, 10 से 16 साल का एवरेज आपका इसी में रिसर्च में ही लग जाता है। तो बचा हुआ टाइम जो है 4 साल, 7 साल, 8 साल, ये वो टाइम पीरियड है जब आप आपका ड्रग आप मार्केट कर सकते हो, और उससे जो खर्चा आपका पूरे डेवलपमेंट में लगा उसे यूज कर सकते हो। उसके लिए आप रिकवरी में भी आ जाता है। एट द सेम टाइम आपके कंपनी के वर्किंग और जनरल पब्लिक के बेनिफिट के लिए भी यूज होता है। तो जब ये ओवरऑल प्रोसेस हो रहा है, तो उस वक्त इस प्रोसेस में
अप्रूवल प्रोसेस, एक्सेलरेशन, जितना आप टाइम बचा पाओ और जितना आपका पेटेंटिंग के ड्यूरेशन में टाइम बचता है, जैसे 16 साल के बजाय से अगर आपने 13 साल का ही टाइम लिया तो 7 साल बचता है, तो 7 साल मतलब आपका रेवेन्यू का चार्जेस बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए एक्सेलरेशन के लिए इस एंटायर प्रोसेस में काम करने वाले सभी बंदों को आप क्लिनिकल रिसर्च प्रोफेशनल्स बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे सब डोमेन्स होते हैं। कुछ होता है क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, जो आपका डेटा स्टडी करता है, फिजिशियंस जो आपकी स्टार्टिंग पॉइंट में कंडक्ट करवाते हैं, यू हैव क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, यू हैव देन मेडिकल राइटर्स जो डॉक्यूमेंट लिखने का काम करते हैं, यू वुड हैव वेरियस सब टीम्स ऑफ स्टैटिस्टिशियंस एंड अदर ग्रुप्स वो आपके काम करते हैं। देन यू हैव रेगुलेटरी अफेयर्स, ये बहुत सारे डोमेन्स होते हैं जो आपके लिए अवेलेबल हैं, सब डोमेन्स हैं जो वर्क करते हैं। तो ये सारे के सारे क्लिनिकल रिसर्च के फील्ड पर्सपेक्टिव्स हैं और फील्ड एंटिटीज हैं। तो इन सबके द्वारा जो किया हुआ काम है वही आपका आगे चलकर पूरा का पूरा क्लिनिकल रिसर्च ड्रग डेवलपमेंट मेडिसिन बनने में हेल्प करता है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्लिनिकल रिसर्च बोलते हैं। और अभी आपने ये देखा होगा ये प्रोसेस काफी एक्सेलरेट होता है, क्योंकि यही प्रोसेस आप वैक्सीन डेवलपमेंट भी करते हो। जैसे आपने देखा कोविड के लिए जो वैक्सीन बना उसके डेवलपमेंट में भी सेम ही प्रोसेस होता है। तो वैक्सीन अगर डेवलप कर रहे हो तो आपका जो डिवीजन है एफडीए में, उसका नाम है सीबीआर, सेंटर फॉर बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन एंड रिसर्च। अगर वो ड्रग रहेगा तो ये सीडीआर, सेंटर फॉर ड्रग इवैल्यूएशन एंड रिसर्च। ऐसे दो डिवीजन है जो उसके लिए आपका डेवलपमेंट करता है। सेम वे इट ऑल्सो इज फॉर द वन सेंटर फॉर द डिवाइसेस रिसर्च एंड रिसर्च के लिए भी होता है, यानी आप डिवाइसेस जो यूज करते हैं मेडिकल फील्ड में वो भी इसी अरेना में। तो ये पूरा अरेना इज क्लिनिकल रिसर्च। मैंने शायद लंबा आंसर दिया, but this is the reality of clinical research. But CB, I must say that you have always had a knack to simplify complex processes. Loved it. Okay, thanks. That's a compliment. I take it as a compliment. अगर ये बात समझाने में मैं सजग रहा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि काफी लोगों को उनके बारे में जनरल मूलभूत विचार और मूलभूत इंफॉर्मेशन है, लेकिन इन डेप्थ नहीं मालूम है कि एग्जैक्टली ये फील्ड क्या है। ये बहुत अच्छा फील्ड मैं इसलिए मानता हूँ कि मैंने जैसे बोला इट्स अ फील्ड विच इज सर्विंग ह्यूमैनिटी, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो मेडिसिन डेवलपमेंट है इट इज गोना बी बेनिफिटिंग द ह्यूमैनिटी एज सच। तो हर मेडिसिन भले कुछ भी डेवलप हुआ हो, उसका ये इंटेंशन हमेशा ये रहता है कि लोगों का ट्रीटमेंट हो सके, लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ रहे या डिसेबिलिटी से मुक्त हो सके। तो दैट्स व्हाई आई कंसीडर इट एज वन ऑफ द वंडरफुल फील्ड्स। That's a surprise. Way to go, CB. जॉब्स का टीडियसनेस दो चीज पे डिपेंड करता है कि आप क्या ट्रेंड हो, फुली ट्रेंड हो, दैट इज वन पॉइंट। दूसरा अवेलेबल जो फैसिलिटीज है वो आपके लिए कैसा है। और एक और पॉइंट रहता है जो बैक ऑफ द माइंड एम्प्लॉयज का पे करता है, जिसका जो है कि हाउ सिक्योर इज द जॉब, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी एक पॉइंट है जो मेंटली पर्सन को, किसी भी पर्सन को वरी करवाता है। स्पेसिफिकली अगर आप देखो पैंडेमिक में भी लोग काफी वरी थे कुछ कॉज के लिए। सो ये पार्ट्स आपके सारे रीजन से ये इफेक्ट आउट होता है टीडीएसनेस ऑफ जॉब की कंटेक्स्ट में। अनदर फैक्टर होता है कि आपका जॉब एनवायरनमेंट कैसा है। एज वी नो कि ऑफिस कंडीशंस, बॉसेस एंड इंटरेक्शन विद कलीग्स भी बहुत सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि अगर ये बहुत अच्छा रहा तो आपके करियर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। इट्स नॉट कि ऑलवेज कि इट्स ऑल अबाउट मनी। लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं। हर एक यंग बंदा ये देखने की कोशिश करता है कि उसको नया लर्निंग क्या मिल रहा है। कुछ बंदा, अधिकतर बंदों का ये भी विचार रहता है कि लर्निंग के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज कौन सा फील्ड, सब फील्ड में मैं जा सकता हूँ। और ये भी रहता है कि उन्होंने जो किया है उसका एप्लीकेशन कहाँ किया जा सके, क्योंकि नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि आपने जो पढ़ा है वो आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। तो ये सारी चीजें डिटरमिनेटिव होती है। तो जब मैं टीडीएसनेस की बात करूंगा तो मैं ये बोलने की कोशिश करूंगा कि अगर ये सारे सेटिस्फाई होते हैं तो जॉब टीडीएस नहीं है, या मेजॉरिटी सेटिस्फाई होते हैं तब भी जॉब टीडीएस नहीं है। तो टीडीएसनेस में ये कभी कभार रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लिनिकल रिसर्च डोमेन में ही सेफ्टी राइटिंग एक ऐसा ब्रांच है जिसमें वर्कलोड, वर्क प्रेशर ज्यादा रहता है और आपके मिस्टेक्स की गुंजाइश ना के बराबर होना चाहिए।
क्योंकि ये हम लोग बात कर रहे हैं सेफ्टी डेटा की। तो ये फार्माकोविजिलेंस में सेफ्टी डेटा वाला जो पार्ट है, ये यहाँ पे थोड़ा सा टीडियसनेस हो सकता है, जैसे आप मानना चाहेंगे तो, बिकॉज इट इज द फैक्ट कि आप बिल्कुल भी मिस्टेक्स ना करें, ये रिक्वेस्ट, ये पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन इस पार्ट में रहता है। क्योंकि जब ये डेटा हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ये डेटा आपके ड्रग डेवलपमेंट में जा रहा है। तो ये एक सॉर्ट ऑफ पॉइंट है मेटिकुलसनेस का रिक्वायरमेंट। आप मेटिकुलस बहुत होने चाहिए, दैट्स द रिक्वायरमेंट। और टीडीएसनेस ज्यादा नहीं रहता है। और आज के डेट में जैसा टेक्नोलॉजी ने हेल्प किया है, लोग घर से बैठकर काम कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम का प्रोविजन फुली अवेलेबल, फुली वर्कआउट है क्लिनिकल रिसर्च डोमेन में, एक्सेप्ट फॉर क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट सीआरएस को जिनको करना पड़ता है, उनके भी काफी ऐसे वर्क कर दिए गए हैं जो कोऑर्डिनेशन से वर्कआउट हो सकता है। तो क्लिनिकल रिसर्च डोमेन में टीडीएसनेस उतना नहीं है जितना मैं आपको बोलना चाहूँ कि बाकी इक्विवेलेंट ऑफ फील्ड्स में रहता है। एट द सेम टाइम इट्स अ चैलेंजिंग फील्ड फॉर यू टू लर्न मोर, क्योंकि हर बार आपको हर डोमेन के लिए, हर थेरेप्यूटिक एरिया के लिए न्यू लर्निंग करना पड़ता है, तो आपको बोरियत कम होगा इस बात के। वेरी वेल सेड। सो सीवी, क्या आपको लगता है कि क्लिनिकल रिसर्च में ये जो करियर ऑप्शन है, इज इट अ गुड ऑप्शन? इसमें कोई अर्निंग को हो या इनकम को हो, कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्लिनिकल रिसर्च डोमेन में एवरेज स्टार्टिंग इनकम 3.6 लाख का एवरेजिंग आपको सेंटर वॉच के डेटा से और बाकी स्टडीज के डेटा से पता चलता है कि ऑन एन एवरेज इंडिया में 3.6 लाख से आप स्टार्टअप कर सकते हो पैकेज पर एनम के हिसाब से। और ये वेस्टर्न कंट्रीज में या यूरोपियन कंट्रीज में बहुत हाई वैल्यूज तक जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका रेंज रहता है अबाउट $74,500 पर एनम से लेके $200,000 तक जा सकता है। आप अगर मैं ऐसे इंडियन करेंसी में बोलूँ तो अप्रोक्सीमेटली 56 लाख पर एनम से लेके 1.5 सीआर तक जा सकता है, 1.5 करोड़ तक जा सकता है, एंड अबव भी जाता है डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज एंड द रिंगर पॉइंट। तो ये डेटा मैं जो आपको बोल रहा हूँ, ये जो वैल्यूज में फिगर्स बोल रहा हूँ, दिस इज द फिगर्स व्हिच इज फ्रॉम requisite organizations and which is also available in Google too. So सीवी, अब ये जो पैंडेमिक जो हुआ था, आपको क्या लगता है क्लिनिकल रिसर्च फील्ड पर उसका कैसा इम्पैक्ट रहा? वो पीपल्स ट्रस्ट? तो क्लिनिकल रिसर्च फील्ड का एक आप बोल सकते हो कि इसमें कंट्रीब्यूशन भी रहा। जब आपने देखा कि वैक्सीन का डेवलपमेंट हो रहा था या फिर ड्रग्स जो कि किसी और ट्रीटमेंट के लिए यूज आउट होता था, बट हम लोगों ने नॉवल यूटिलिटी में ट्रीटमेंट अगेंस्ट कोविड बेस्ड ऑन सिम्टोमेटिसिटी देखा था। तो दीज आर ऑल पार्ट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च डोमेन, ये मेरा मानना है। तो क्लिनिकल रिसर्च डोमेन वाज इंस्ट्रूमेंटल इन पैंडेमिक फॉर ड्रग डेवलपमेंट, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है, आपको सेटिस्फैक्शन इस चीज से होता है कि आप ड्रग डेवलपमेंट के पार्ट हो, तो आप खुश होते हो कि हाँ दिस इज वन फील्ड व्हिच इज एप्लीकेबल। पैंडेमिक सुखद नहीं है, लेकिन पैंडेमिक में ट्रीटमेंट और पैंडेमिक में ड्रग डेवलपमेंट वाज अ रिस्पॉन्सिबल जॉब जो क्लिनिकल रिसर्च प्रोफेशनल्स ने किया। इस दौरान क्लिनिकल रिसर्च प्रोफेशनल्स ने जो वैक्सीन डेवलपमेंट में थी, जिन्होंने वैक्सीन डेवलपमेंट का काम किया था, उन्होंने कोशिश किया, और जो चीजें नॉर्मली 10 से 12 साल में होता है, 10 से 12 साल लगते हैं ऑन एन एवरेज वैक्सीन डेवलपमेंट का एवरेज टाइम स्पैन, उसे एक्सेलरेटेड मॉड्यूल, एक्सेलरेटेड वे ऑफ डेवलपमेंट बाय collaborations between governments and the clinical research professionals, industry, everyone together, सब लोग साथ में आए थे। इसलिए ये आप देख सकते हैं अबाउट 9 to 10 months के अंदर आपका वैक्सीन डेवलप आउट हुआ, उसका टेस्टिंग भी हुआ, एंड आज आप देख सकते हो कि वैक्सीन आपके पब्लिक सपोर्ट में एंड ट्रीटमेंट में यूज आउट हो रहा है। एंड वी वेरी हैप्पी टू से दैट अबाउट आई थिंक अगेन 97% लोगों ने इंडिया में तो एटलीस्ट वैक्सीन ले लिए हैं फर्स्ट डोज, जिसे गवर्नमेंटल consideration है, governmental announcement. So that's a very good thing. It gives an idea to what you have contributed and you have ensured to the people that have been able to pass through this pandemic. And आज की डेट में जैसे आज का जो न्यूज में जब देखता हूँ तो ज्यादा खुशी होती है कि मुंबई में the numbers have gone down to near zero, okay, of the new cases were now. That gives us a very happy feeling कि at least yes, vaccine development
एंड ट्रीटमेंट मोडालिटीज, हमारे फिजिशियंस, हमारे क्लिनिकल रिसर्च प्रोफेशनल्स, उनका एफर्ट्स बहुत हेल्पफुल रहा, along with governmental authorities to coordination and support and decision making and industry professionals. So it has been a mix of everyone together to help out. जनरल पब्लिक का पूरा सपोर्ट भी रहा कि उन्होंने चीजों को समझा और उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट किया एंड ये पर्टिकुलर ड्यूरेशन में अपना टाइम निकाला, अपना जो भी कंट्रीब्यूशन करना किया इन टर्म्स ऑफ सपोर्टिंग द गवर्नमेंट, सपोर्टिंग द इंडस्ट्री पर्सनस. It has been a time when everyone worked together is what I feel. So yes, but इसमें स्ट्रेस भी था क्योंकि डेवलपमेंट के टाइम पे सेफ्टी भी देखना था. आपको वैक्सीन डेवलपमेंट में तो वैक्सीन के ट्रायल्स भी होते रहे हैं. तो वैक्सीन ट्रायल्स में ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई भी मेडिसिन या कोई भी वैक्सीन 100% इफेक्टिव हो सभी जगहों में. तो उसका परसेंटेज वैरी करता है. तो ये भी एक पॉइंट है जो पब्लिक को फर्स्ट टाइम देखने को मिला कि वैक्सीन डेवलपमेंट या ड्रग डेवलपमेंट इंडस्ट्री काम कैसे करता है इनडायरेक्टली, क्योंकि ये पता चला है कि भाई ऐसा भी फील्ड होता है जो एक्चुअल में इस पर वर्क करता है. तो वो पॉइंट भी था. और इस दौरान जो लोग क्लिनिकल रिसर्च में थे वो भी काफी स्ट्रेस थे. ऑब्वियसली सभी लोग स्ट्रेस थे, वो भी स्ट्रेस थे क्योंकि वो भी चाहते थे कि जल्दी कुछ इसका वैक्सीन या मेडिसिन का डेवलपमेंट हो सके ताकि पैंडेमिक से बाहर निकाला. Indeed, CB, this is a remarkable feat. In fact, hats off to you guys. एक तरीके से एक प्राउड भी फील होता है that I had been a part of this field, and it also feels proud to interview a person who is still a part of clinical research. Truly, you guys are amazing. I take it as a compliment and I take it as a well needed appreciation for all the physicians, all the people who have contributed extensively in this. Thank you, Namita. Absolutely, CB. So, आप बता सकते हैं कि क्लिनिकल रिसर्च फील्ड में आने के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगा? नॉर्मली आपसे एक्सपेक्टेड रहता है कि आप ग्रेजुएशन में लाइफ साइंसेस, बी फार्मेसी, बेसिक बॉटनी, MBBS, you can have डॉक्टरेट डिग्रीज कर सकते हैं. आपका एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि बायोलॉजिकल साइंसेस में आपको बॉडी के बारे में, केमिकल्स के बारे में, यानी इसलिए आप केमिस्ट्री, बेसिक केमिस्ट्री वाले भी इसमें इंटरेस्टेड आ सकते हैं. तो ग्रेजुएशन इज द मिनिमम नीड जो आपको फर्स्ट लेवल पे चाहिए रहता है. आई बिलीव इन वन फैक्ट कि एनीवन हु हैज डन अ ग्रेजुएशन हैज डन द बेसिक रिक्वायरमेंट टू बी एडेप्ट टू गेट इनटू एनी ऑफ द इंडस्ट्री, एनी ऑफ द एस्पेक्ट्स. तो यहाँ पे भी ग्रेजुएशन मिनिमम क्राइटेरिया है फॉर गेटिंग इनटू इट. जितना आपका हायर डिग्री, हायर एप्टीट्यूड, हायर क्वालिफिकेशन रहेगा, दैट विल बी एडेड ऑन एडवांटेज. एंड गुड अबाउट सॉफ्ट स्किल्स आल्सो. सॉफ्ट स्किल्स पे ध्यान देना थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ये मैं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना जरूर चाहूंगा कि सॉफ्ट स्किल भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि स्ट्रेस हर फील्ड में होता है, हर जॉब में होता है. सॉफ्ट स्किल में आप अगर जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन इज अ वेरी क्रिटिकल थिंग. अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसमें लैक हो जाओगे. वो आपको इंडस्ट्री में या किसी भी अरेना में इफेक्ट जरूर करता है. तो बेसिक क्वालिफिकेशन अगर आप मुझे फिर वापिस पूछना चाहोगे तो मैं वापिस बोलूंगा ग्रेजुएशन, दैट इज बैचलर डिग्री, is the minimum requirement. For specifics के लिए कुछ हायर डिग्रीज का भी रहता है. जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल राइटिंग में कुछ पार्ट्स के लिए you would require doctorates only, and MBBS and MD guys are preferred, PhD guys are preferred in that arena. But preferentially, when you look into anyone who is having a graduate degree is in biological, life sciences, and chemistry and pharmacy are most welcome in this industry, and they are the ones who will be able to contribute more. बी फार्मेसी को एक छोटा सा प्रेफरेंस मिल जाता है क्योंकि वो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में उनका इंफॉर्मेशन काफी रहता है. तो दे आर आल्सो प्रेफर्ड ग्रुप ऑफ इट. तो एज आई सेड, ये सारे बंदों को आपको एक हल्का ट्रेनिंग चाहिए रहता है to get them aligned to what is the requirements of the clinical research industry. Superb, CB. CB, क्या बता सकते हैं on some of the career options in clinical research? Definitely, Namita. वैसे आप खुद भी क्लिनिकल रिसर्च में काफी टाइम काम कर चुकी हैं, so you know it कि that's a brilliant field. But still मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देते हुए ये बोलना चाहूंगा
कि क्लिनिकल रिसर्च में आप काफी डोमेन्स में एंटर कर सकते हो। जैसे आपका रहता है, अगर आपको फॉर एग्जांपल मैं इसे सिंपल टर्म में, अभी ये मैं प्रोफेशनल नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिंपल टर्म में जनरल पब्लिक के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बोल रहा हूँ। जॉब दो तरह के, दो एप्टीट्यूड वाले बंदे होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोग चाहते हैं कि, या कुछ लोग पसंद करते हैं कि ऑफिस में बैठ के काम किया जाए, और कुछ लोग होते हैं जिन्हें ऑफिस में बैठना पसंद नहीं है, वो पसंद करते हैं कि बाहर जाकर काम करें, यानी उन्हें ट्रैवलिंग वाला पसंद है। तो मैं उस तरीके से ये इंडस्ट्रियल जॉब, जो जॉब से क्लिनिकल रिसर्च एरिया को बताना चाहूंगा। तो फॉर एग्जांपल जिन्हें ट्रैवलिंग पसंद है, उनके लिए एक अरीना है क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट जॉब्स का। ये वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो क्लिनिकल प्रोफेशनल्स हैं, जो जाकर डॉक्टर्स से बात करते हैं, जिन्हें जिनको क्या है, उन्हें ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि भाई क्लिनिकल रिसर्च में प्रोटोकॉल क्या है, और साइट विजिट करते हैं, वहां पर ये देखते हैं कि भाई जो रिसर्च हो रहा है, स्पेसिफिकली क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, वो क्लिनिकल ट्रायल्स इज इन अलाइनमेंट विद व्हाट हैज बीन डिफाइंड इन द प्रोटोकॉल देखा जाता है। तो ये क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट वाला जॉब है, सीआरए, जो आप ऑफिस में कम बैठते हैं, ट्रैवलिंग ज्यादा होता है। ऑन एन एवरेज आप महीने में तो वर्किंग डेज अगर मैं बोलूँ तो एवरेज 20 डेज वर्किंग होता है, तो ऑफ द 30 डेज फ्रॉम कंसिडरिंग की वीकेंड्स छुट्टी होता है, तो उसमें 20 डेज में भी आप 12 to 14 डेज ट्रैवल करोगे। ऐसा जॉब होता है, दैट इज क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट का। बाकी जो ऑफिस में बैठे हुए जॉब, तो काफी लंबा लिस्ट है, उसे आपको बोलने की कोशिश करता हूँ। पहला है क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट। इसमें इस पर्टिकुलर फील्ड में आप जो क्लिनिकल ट्रायल्स में जनरेट हुआ डेटा है, आप उसे क्लीन करना चाहोगे, उसको वर्कआउट करना चाहोगे, उसका करेक्टनेस एस्टैब्लिश करना चाहोगे, दैट्स क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट जॉब इन जनरल बोल रहा हूँ। डिटेल्स में अब बहुत ज्यादा डिटेल्स में है कि ये अकेला वर्क नहीं है, इनका वर्क प्रोफाइल काफी बड़ा है, बट दिस इज जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए। अनदर अरीना इज, जब आपने क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट कर लिया है, क्लिनिकल ट्रायल्स का डेटा साफ कर लिया है, क्लिनिकल ट्रायल्स क्लीन, डेटा इज एक्चुअली क्लीन, डेटाबेस लॉक हो गया है, तो आप चाहेंगे कि इस डेटा का कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करे। तो स्टैटिस्टिकल सैस प्रोग्रामिंग वाले बंदे होते हैं, जो आपका सैस प्रोग्रामर्स कहलाते हैं, दे आर द वंस व्हिच इज अ पार्ट ऑफ अरीना। Then you have the one who will be writing down this document, यानी जैसे आपको लिखना होता है, लिखने का मतलब आप अब हैंड रिटन नहीं बोलेंगे, टाइप इट आउट, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जो जनरल बोला था, लोगों ने बोला कि लिखना भी पड़ता है, लिखना नहीं पड़ता, आपको टाइप करना पड़ता है, वर्ड डॉक्यूमेंट में आपको इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट करना पड़ता है। तो वो जो रिपोर्टिंग डेटा के फॉर्म में पूरा डेटा का एनालिसिस करके आप जो रिपोर्ट बनाते हो, उसे आप मेडिकल राइटर्स बोलते हो। तो मेडिकल राइटिंग इज अ डोमेन। देन यू हैव ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स करके होता है, जो बंदे लोग रेगुलेटरी बॉडी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द स्पॉन्सर, वो एक अरीना है। तो अगर आप ऐसे देखते जाओगे तो बहुत सारे सब फील्ड्स हैं। टोटल अगर मैं आपको एवरेजिंग सब फील्ड बोलूँ तो देयर इज अबाउट 47 सब फील्ड्स हैं जो आपके जॉब टाइटल्स है, जो क्लिनिकल रिसर्च डोमेन में है। तो वो करना तो बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर कुछ बताने की कोशिश की। तो ये सारे एरियाज हैं। वंडरफुली सेड सीबी। सो सीबी, अब आते हैं एक हॉट क्वेश्चन के ऊपर। ऑफ कोर्स आगे और भी हॉट क्वेश्चंस हैं, पर शुरुआत करती हूँ फर्स्ट से। कैन यू टेल मी विच इज द टॉप मोस्ट हाईएस्ट पेइंग जॉब इन क्लिनिकल रिसर्च, और उसके लिए स्किल सेट क्या लगेंगे, मैंडेटरी स्किल सेट? ओके, जैसे मैं यहाँ पे एम्फेसिस करके एक एग्जांपल भी देना चाहूंगा। वन ऑफ माय फेवरेट पर्सन इज एलन मस्क। तो मस्क जब उन्होंने स्टार्ट किया था, और जो आज वो जिस स्थिति पे है, तो आप जानते हैं कि उनका जो ड्राइविंग फोर्स इज इनोवेशन, ड्राइविंग फोर्स इज डूइंग समथिंग वेरी डिफरेंट। सो अगर आपका ड्राइविंग फोर्स बहुत अच्छा है, इफ यू आर इंटेंडेड विद very high motivation energy, any field you can rise to the top, and there is no ceiling, upper ceiling of how much you can earn. That's first point. Second point, since you asked out in a comparative point of view, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि क्लिनिकल रिसर्च में मेडिकल राइटिंग फील्ड और क्लिनिकल रिसर्च फिजिशियंस ऐसे हैं जिनका अर्निंग पोटेंशियल एज पर द करंट ट्रेंड आप देखोगे तो यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा है। सो दे आर अमंग द क्लिनिकल रिसर्च प्रोफेशनल्स, हाईएस्ट अर्निंग इज
medical writers who sit at the directorial levels, and clinical research physicians जो कि conduct करते हैं. So they are in the averaging range of about $200,000 on an average के range में पड़ते हैं. So they are the highest earning people in the part. And in सब के लिए mandatory skill, as I said, is soft skill plus hard skill. Hard skill में they know their arena well, they know their study well, in the sense जब हम लोग क्लिनिकल एज फिजिशियन की बात करें तो ही इज अ फिजिशियन, सो वो डॉक्टर है जो पूरी तरह जानते हैं कि ट्रीटमेंट क्या है. दे आर द बेस्ट इन देयर फील्ड, प्लस दे नो हाउ टू कंडक्ट इट and they have an aptitude for it. So all these added together is what makes them one of the best in their alignment, and that's a mandatory skill required also. मैं यहाँ आपको ये जरूर बोलना चाहूँगा कि ये मैं सारे क्वेश्चंस टेक्निकल आंसर के बजाय मैं जनरल प्रोविजन जनरल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ. थैंक यू. अग्रीड सीबी. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हॉट क्वेश्चन के ऊपर. कैन यू प्रेडिक्ट लाइक फ्रॉम 5 years फ्रॉम नाउ और फ्रॉम 10 years फ्रॉम नाउ ऐसी कौन सी जॉब्स होगी क्लिनिकल रिसर्च में जो कि अगेन हॉट जॉब्स कहलाएंगी? उसके लिए मैंडेटरी स्किल क्या होगा? ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा मैंने कहा, क्योंकि ये आज के दौर में सभी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि नेक्स्ट क्या चलने वाला है, क्या होने वाला है. सो प्रेडिक्टेबिलिटी तो मैं ऐसा नहीं बोलना चाहूंगा कि प्रेडिक्ट 100% करूंगा, लेकिन मैं जरूर ये बताऊंगा कि टेक्नोलॉजी का मोमेंट एंड ट्रेंड जो है वो किस ओर जा रहा है. तो आज के डेट में ट्रेंड है इज पर्टिकुलर फिनोमेनन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एआई एंड मशीन लर्निंग ये इंटरफेस बन गया है हर अगला के लिए. So AI and machine learning has also become an interface science in helping the clinical research domain. So the professionals who are trained in AI and clinical research as a submerged merging together, capably able to develop algorithms for doing the clinical trials, clinical research, adaptive designing. ये सारा जो है वो फ्यूचर ट्रेंड के हिसाब से आप देखा जाए तो समथिंग व्हिच इज गोना बी द मोस्ट इन डिमांड स्किल सेट रहेगा. मैं आपको बोलना चाहूंगा एल्गोरिथम डेवलपमेंट. एआई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ओनली डेटा वर्किंग डेटा एनालिसिस नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ एल्गोरिथम डेवलपमेंट. एल्गोरिथम डेवलपमेंट का मतलब होता है जब हम लोग मशीन से कोई काम कर रहे हैं तो हम उनको एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं, और वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे मशीन ह्यूमन बीइंग जैसा एक्टिविटी करता है. रिपीटेबिलिटी उस एक्टिविटी को करने पर वो और एफिशिएंसी बढ़ता है, और प्रेडिक्टेबिलिटी के लिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज कर लेते हैं. तो ये चीजों को मेजर किया जाए तो एल्गोरिथम डेवलपमेंट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मोस्ट क्रक्स एरिया है, एंड दैट इज द वन व्हिच इज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन क्लिनिकल रिसर्च डोमेन आल्सो. क्योंकि आप ये प्रेडिक्टेबिलिटी आप करना चाहोगे कि व्हिच ड्रग विल बी working the best in the given population, yeah, what is the predictability that this is gonna be the medicine of future, price of treatment. So in सब के लिए the merging inference is clinical research domain people having an expertise in artificial intelligence and machine learning. ये मैं देखता हूँ अपना फ्यूचर ट्रेंड है, एंड दैट्स व्हाट इज गोना बी द मोस्ट हाई अर्निंग प्रोफेशन इन द कमिंग इयर्स. Wow, this sounds super exciting. And in fact, अगर ये सच में होता है, so this is going to be phenomenal. Yes, it is phenomenal because मैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें बोलना चाहूँगा. जैसे फॉर एग्जांपल एलन मस्क जब प्लान करते हैं कि वो इंटरप्लैनेटरी ह्यूमन ट्रैवल एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन का ट्रांसफॉर्मेशन, ह्यूमन सिविलाइजेशन का पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डेवलपमेंट इन दीज रीजन्स जो कि एब्सोल्युटली नॉन ह्यूमन अलाइंड रीजन्स हैं. तो व्हाट यू लुक फॉरवर्ड टू इज दैट कि उन्हें सिस्टम्स चाहिए जो ह्यूमन बीइंग्स को कैप्सूल फॉर्मेट, कैप्सूल नेटवर्क्स या फिर पॉड्स या लिविंग क्वार्टर्स, लिविंग डोमेन सिस्टम्स बना सके जो आर्टिफिशियली ह्यूमन लाइफ सपोर्ट कर सके, जैसे मार्स में. तो ऑब्वियसली उन्हें मेडिसिन की भी जरूरत पड़ेगी to normalize the human systems. So if you look into that point of view, medicine is something which is going to be always there, because as long as human life is there. So when human life is going to be there, for that this arena of clinical research is going to be there, isn't it? So that's the reason I say till humans are there, clinical research is there.
Okay, anti-life research, clinical research has to be there because survival for the fittest is what is going on among all organisms, and we have to work on that. So that's the way how I look at it. It's a sunrise industry. Absolutely, CB. CB, next hot question, and it is about pharmacovigilance. ऐसा All right. कहा जाता है और माना जाता है कि अगर इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम सोचे तो फार्माकोविजिलेंस की जो जॉब्स है वो काफी डिमांड में है. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? फार्माकोविजिलेंस का जॉब हमेशा डिमांड में रहेगा. उसका एक रीजन मैं आपको समझाता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन वाज फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डेवलप्ड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा long back during the last no, in the earlier time point, start point of view of medicine development. The first antibiotic is penicillin. जब पेनिसिलिन का डेवलपमेंट हुआ तो पेनिसिलिन आज भी यूज होता है, लेकिन पेनिसिलिन आज के लिए यूज होता है ओनली फॉर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के लिए. तो अगर आज भी वो यूज हो रहा है तो इतने सालों बाद भी अगर वो सेफ है या नहीं ह्यूमन यूसेज के लिए, कंसिडरिंग द फैक्ट कि बीटा लैक्टम रिंग तोड़ने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण रेजिस्टेंस हो सकता है, तो आप ये जानना चाहते हो कि इतना जो पॉपुलर एंटीबायोटिक जो था वंस अपॉन अ टाइम, क्या आज भी उसका रेलेवेंस है? तो आज भी अगर वो ट्रीटमेंट में यूज आउट हो रहा है तो आप उसका सेफ्टी जरूर जानना चाहोगे. इज इट स्टिल सेफ फॉर द ह्यूमंस और नॉट? तो उसका भी सेफ्टी डेटा हम आज भी स्टडी करते हैं. तो जो नए ड्रग्स है उसका भी सेफ्टी डेटा स्टडी करेंगे. तो जब तक हम लोग सेफ्टी प्रोफाइल, सेफ्टी इंफॉर्मेशन, सेफ्टी डेटा स्टडी करेंगे किसी भी ड्रग का, किसी भी मेडिसिन का, तो उस पूरे मेडिसिन का जो सेफ्टी डेटा जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं इन जनरल पॉपुलेशन, हर जो मेडिसिन, हर जो ड्रग जो यूज आउट हो रहा है या विच इज इन द मार्केट, उसके बारे में स्टडी करना कंपल्सरी है फॉर द सेफ्टी प्रोफाइल. तो जब आप किसी ड्रग का स्टडी करते हो, वंस इट हैज बीन मार्केटेड, इज कॉल्ड एज पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस. क्लिनिकल ट्रायल के टाइम पॉइंट पे जो स्टडी होता है सेफ्टी प्रोफाइल वो, और पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस, अगर आप देखोगे तो इट्स अ ह्यूज स्टडी एंड एक्सपांसिव स्टडी, क्योंकि इसमें इट्स रीचिंग आउट टू मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल. अबाउट 7.8 बिलियन पीपल वी हैव ऑन प्लैनेट अर्थ. So majority of the people are getting to have some of the medicines, other medicine being taken, और उन सबका सर्वेलेंस करना, उनका डेटा जनरेट आउट करना, उनका जो डेटा जनरेट आउट हुआ है उसको स्टडी करना और इंश्योर करना है कि सेफ्टी इज बीइंग मेट is what is the pharmacovigilance profession's job. So it's a big one. Okay, it has a center. Pharmacovigilance का center is in Uppsala, Sweden. And it is the one where it requires you to have so much of data being generated. तो उसका डेटा जनरेशन जब इतना ज्यादा है तो डेटा एनालिसिस, डेटा कोलेशन, डेटा स्टडिंग एंड डेटा रिपोर्टिंग ये भी बहुत ज्यादा रहेगा. इसीलिए फार्माकोविजिलेंस के जॉब्स मैक्सिमम नंबर में अवेलेबल है. That's correct. So CB, what are your future goals? See, after being in the clinical research domain and contributing, my future goal is to contribute more in this clinical research domain till you are being there on planet Earth, and secondly, also contribute to ensure that those who desire to be part of clinical research domain get trained and are getting into the industry. So ये भी आप कोशिश करना चाहोगे. So that is my future goal. So I want to be the entrepreneur who is working towards ensuring that the people who want to be part of clinical research domain are able to get into clinical research domain, and we are able to do the right help for them to attain and get their dreams true, because that's what is the ultimate aim. Wonderfully said, CB. So CB, last question of the day for you. Sure. क्या आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, कोई स्पेशल मैसेज या तो एडवाइस टू आवर व्यूअर्स, आवर ऑडियंस? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के हिसाब से जैसे हम लोगों ने अपने आप को अडेप्ट किया है ऑफलाइन टू ऑनलाइन, एंड आज की डेट में जैसे हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज है, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू कीप लर्निंग, क्योंकि लर्निंग इज एन अनएंडिंग प्रोसेस, and to support each other in all the versions. For example, today you are supporting someone in a very good way to entrepreneurship, a very good way to get ahead in life. Even simple talking with someone also helps. So all these things where you do contribute
to the development will ensure that we as humans are developing and ahead of the line and ahead of and doing best in our ways. That's what I would love to say to everyone. Wonderfully said, CB. So, CB, on that note, I would again like to say thank you to you for your time, for your efforts today. आप यहाँ आए, आपने इतनी सारी बातें कही, which is like super awesome. So, CB, thanks a lot once again. It's a pleasure to connect with you always. Thank you so much, Namita, for giving this platform. May this platform grow the best it can, and may hundreds of people, thousands of people get the benefit of this platform. Thank you so much, Namita.